Assalamu alaikum, dear students. My dear students, today our topic will be about the characteristics of a sound wave. Okay, we are going to continue with the waves. हमने waves के बारे में जाना. We have studied about the broad classification of the waves, and in that came to know that waves are generally categorized into two types. One is the electromagnetic wave and second is transverse wave, mechanical wave. Mechanical wave is itself divided into two crude forms. Mechanical wave has a two crude forms. One is transverse wave and second is longitudinal wave. And finally we came to know that the chapter we are studying this is actually sound that is belonging to a longitudinal wave. It consists of longitudinal wave, consists of compressions and rarefactions. Okay, beta. And the classification, the waves classification of mechanical waves are based on the movement of the particles with the movement of waves. Okay, आज का जो हमारा हमारा टॉपिक होगा, वेरी सिंपल टॉपिक, आपने भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव. ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट हियर द टॉपिक्स नेम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव. ठीक, the first characteristic that we will talk about is simply wavelength. Okay, beta, these wavelength, the number of characteristics of sound wave are in fact waves of one is wavelength, second is frequency, third is amplitude, fourth is time period. These are some of the characteristics that generally we talk about the waves. Okay, आज हम जानेंगे कि ये characteristics जो है actually होते क्या हैं. What is actually wavelength? First we will talk about the wavelength, later on we will be discussing them one by one. Wavelength क्या होती है? It's first of all it is represented by a Greek letter that is called as lambda. वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्बडा से, एंड लैम्बडा की नोटेशन, दिस इज द नोटेशन ऑफ लैम्बडा. ओके, सो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ, लेंथ ऑफ ए वेव, सिंपली लेंथ ऑफ ए वेव. अब वेव क्या है? वेव कंसिस्ट्स ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. ठीक है, लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इज सिंपली कॉल्ड एज वेवलेंथ. अगर मैं यहाँ पे वेव को रिप्रेजेंट करूँगा, दिस इज the representation of a wave. This is called top, this is called as peak of the wave is called as crest and the depression is called as trough. ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है. जितना पीक होगा उतना ही डिप्रेशन होगा. ठीक है, डिफरेंट नहीं होता है. सो I have said the wavelength is actually the length of the combination of crest and trough. That means length, दिस इज द क्रस्ट एंड दिस इज द ट्रफ. ठीक है, इतनी जो लेंथ होती है, दिस इज कॉल्ड एज वेव लेंथ. तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ? लैम्बडा के साथ. ठीक है, ये तो होगी एक डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट. दिस इज ऑल्सो क्रस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रफ. टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. ठीक है, या तो ये हम बोल सकते हैं इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, इट इज़ ऑल्सो वेवलेंथ, एंड टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वेवलेंथ. ठीक है, तो वेवलेंथ के दो डेफिनेशंस हैं, दोनों सही है. लेंथ ऑफ वेव कंसिस्टिंग ऑफ वन क्रस्ट एंड वन ट्रस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. ओके, दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. और उसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. ओके, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज वेवलेंथ. ओके, एज अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? सिंपली मीटर. So wavelength is usually measured in terms of SI units, that is meter. Okay, simple. See definition, simple characteristic. Hope you have got it very easily. Okay, I'm not going to repeat it. Number second that we are going to discuss about the characteristics of sound wave is the frequency. देखो बेटा, अब देखो, suppose this crest and trough, this is the crest of the wave and this is the trough of the wave. देखो, okay, it completes, this is called as the cycle of a wave, this is called as one cycle of a wave. ठीक है, complete cycle. Suppose complete cycle means one complete cycle constituting of one crest and one trough. This is the cycle. ओके, उसको हम ऑसिलेशंस भी कहते हैं. ओके, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रही है वेव. फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज सिंपली द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेव
number of cycles produced by a wave in 1 second. In 1 second, ओके, एक सेकंड में एक वेव कितनी ऑसिलेशंस कर रही है, ठीक है, कितनी ऑसिलेशंस कर रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अब फ्रीक्वेंसी क्या है, सिंपली अगर मैं एक पॉइंट से एक वेव को क्या करूँगा, वेव को पास ऑन करूँगा, तो कितनी कितनी अगर एक पॉइंट, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि इस पॉइंट पी से क्या हो रहा है, वेव पास हो रही है, तो कितनी इस पॉइंट से कितनी ऑसिलेशंस एक वेव कर रही है, ओके, इन 1 second. In 1 second, simply the number of oscillations or the number of cycles produced by the wave in 1 second is called as frequency. यहाँ पे मैं लिखूंगा number of oscillations or cycles produced by a wave in 1 second is simply called as frequency. Okay, and frequency को हम represent करते हैं किसके साथ, जैसे वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा के साथ विद द ग्रीक लेटर लैम्बडा. लैम्बडा की नोटेशन ऐसी है. फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू के साथ. आर यू गेटिंग मी? न्यू, एन यू, नॉट एम यू, न्यू. एंड न्यू की नोटेशन ऐसे होती है, दिस इज द नोटेशन ऑफ न्यू. और सिंपली इसको हम एफ के साथ भी डिनोट करते हैं. किसको? फ्रीक्वेंसी को. ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 second. सो एफ का जो वैल्यू होगा, अगर मैं एफ की बात करूँगा तो एफ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टाइम टेकन तो सेकंड आएगा. सपोज अगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि ए वेव कंप्लीट्स 40 oscillations in 1 second. 40 oscillations in 1 second. What is the frequency of that wave? Simply f will be equal to number of oscillations are 40 and in 1 second is 1. The f will be equal to 40 hertz. Hertz. अब hertz क्या है? Hertz is the SI unit of frequency. It's measured in terms of hertz. In terms of hertz. Are you getting me? So hz को हम simply लिखेंगे hertz. सो अगर आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा, ए वेव कंप्लीट्स 70 ऑसिलेशंस इन 3 seconds. ए वेव कंप्लीट्स 70 ऑसिलेशंस इन 3 seconds. व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? सिंपल. अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. So number of oscillations, how much are the number of oscillations? 70 in 3 seconds divided by 3. So 3 2s are 6, 3 3s are 9, 23, around 23 or 23. ओके 23 और 24 हम 24 भी लिख सकते हैं. सो इसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स ए वेव ऑसिलेट कर रही है 70 टाइम्स इन 3 seconds. सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, हमें फ्रीक्वेंसी इज सिंपली फॉर 1 second. फ्रीक्वेंसी सिंपली फॉर 1 second, मतलब एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस कर रही है एक वेव. तो कितनी ऑसिलेशंस कर रही है वो? 70 ऑसिलेशंस. बट टाइम टेकन कितना है? 3 seconds. सो एक सेकेंड में वो कितने ऑसिलेट करेगी? 24 ऑसिलेशन. सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी अराउंड 23 और 24. 23. ठीक है बेटा. 23 oscillations it will be producing in 1 second. So its frequency will be 23 hertz. Simple. Okay, I got this. This is the second characteristic.